Hello, my dear friends. How are you all? Today, we are going to cover the new topic indifference curve analysis. This is basically the part 2 of consumer behavior analysis. Indifference curve analysis is the ordinary measurement of the analysis part, and it analyzes the customer preference. It is assumption that it has only two goods. Customers are rationals and having complete knowledge about the two goods, and price, income and taste is remain constant. IC curves always negatively sloped. It means it is a slope downward. It is because of law of monotonic customer preference. Monotonic customer preference means customer have two goods. If the price of one good is increases, he consumes another good, and if the price of another good is increases, he comes with the previous one. It is convex to origin, means the curve is always the origin to convex, and it shows a scale of preference. It denotes as IC1. Okay, इट शोज द इनफाइनाइट मैप, मीन्स इसी सर्कल में ही, इसी बॉक्स के अंदर बहुत सारे आईसी कर्व्स हमारी हो सकती हैं. हायर द आईसी कर्व्स हायर द सेटिस्फेक्शन, एंड इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बिकॉज लॉ ऑफ मोनोटोनिक कस्टमर प्रेफरेंस, एंड नॉट पैरेलल टू ईच अदर. कभी भी पैरेलल नहीं होते हैं, ये ऊपर ही की तरफ शिफ्ट होता है. इट शोज द कमोडिटी स्पेस. कमोडिटी स्पेस मीन्स indifference plane. Indifference plane is the space between the x-axis and y-axis. This is the commodity space. देन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एक नया टॉपिक इसके अंदर आता है जो कि होता है सब्सटीट्यूशन एफर्ट. नाउ आपने रियलाइज किया लॉ ऑफ मोनोटोनिक कस्टमर प्रेफरेंस. हियर आर टू गुड्स. इफ द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस, ही चूजेस अनदर प्रोडक्ट, एंड इफ द प्राइस ऑफ अनदर गुड increases, he remains to the previous one. So the formula is delta y upon my delta x, or it can be denoted as minus negative में MUF marginal utility of X commodity divided by marginal utility of Y commodity. It ranges from 0 to infinity. It has three types: diminishing, constant and perfect. In cases of diminishing, marginal rate of substitution is lesser than 1. So the IC curve is always convex to the origin. MRS when is equal to 1, then it is known as constant. Means the price increases, the customer preference is also in same proportion increases. So the IC straight line curve is the straight line. This is the case of substitutes. Whichever the substitute, perfect substitution. But in the case of diminishing, the substitutes are imperfect. Then in the third case, perfect or say increasing marginal rate of substitution is greater than 1. It has L shaped, and the area between the MRS is this. Here is the MRS is infinity, and here is the no, so here is the 0 and it is the infinity. Yes. So next is the diminishing marginal rate of substitution. Diminishing marginal rate of substitution is because of the marginal utility of x or marginal utility of y has negative relation. So the IC curve is convex to the origin. Here is quantity, here is indifferences. Indifferences की curve होगी हमारी IC curve. Indifferences की convex to the origin, and there are imperfect substitute. In the constant MRS, means constant marginal rate of substitution, the goods are perfect substitutes, and it is because of straight line. IC is the straight line and MRS is equal to 1. It is known as constant MRS. In the perfect complementary goods, MRS is equal to 0 to infinity. Here is MRS is equal to 0, and here is MRS is equal to infinity, and the MRS lies in between this. Okay, here is MRS. Okay, so IC is the concave, not say concave, IC is the L-shaped curve, and it is the rare case. Then why diminishing marginal rate of substitution? Because if the intensity decreases, consumer consume less. If the consumer consume more, अगर एक टाइम पे कंज्यूमर बहुत ज़्यादा
कंज्यूम करने लग जाता है, देन हिज वांट्स डिक्रीजेस, तो उसकी इच्छाएं कम होने लगती हैं। मोस्ट गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, बिकॉज मोस्ट गुड्स क्या होते हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसके अंदर एक टॉपिक और आता है, दैट इज द बजट लाइन। बजट लाइन मीन्स कंज्यूमर चॉइसेस आर लिमिटेड बाय द बजट, इट इज बेस्ड ऑन द प्राइसेस और द इनकम्स। It is known as outlay line or consumer possibility line. It also have a negatively sloped because of the law of demand. Law of demand states that price increases, demand decreases. So the price decreases, demand also decreases. So it has a negatively sloped. It shows as a straight line because of the market rate of exchange are constant, and it shows the real income line. It is tangent to IC curve, means IC curves के नीचे से बिल्कुल सीधी रेखा खींचोगे तो that means it is tangent, and it has assumption same like IC curve, that टू कमोडिटी, इनकम हमें पता है, प्राइस हमें पता है, और एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम के इक्वल है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। नाउ बजट लाइन का फॉर्मूला है पी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू में क्यू वाई इज ग्रेटर देन बी, मीन्स मनी अवेलेबल हमारे पास ज़्यादा है तभी हम इतनी स्पेंडिंग कर पा रहे हैं। ओवर स्पेंडिंग एंड अंडर स्पेंडिंग का भी केस होता है इसके अंदर, ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपके बजट्स हैं। अगर ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे अगर आपने किया तो कहते हैं टोटल कंजप्शन ऑन बजट लाइन, दैट इज ना टोटल इनकम, ये आपके इनकम है, तो ये आपकी टोटल इनकम हो गई। अगर आपने इससे ऊपर किया तो ओवर स्पेंडिंग है, और इससे नीचे किया तो आपने अंडर स्पेंडिंग की है। इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, बजट भी, हमारी बजट लाइन भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जैसे ही इनकम घटेगी तो हमारी बजट लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर हम रिलेटेड गुड्स की बात करें तो अनपैरेलल शिफ्ट्स होते हैं, किसी तरीके से भी बढ़ेगी और किसी तरीके से भी घट जाएगी। अब कंज्यूमर बजट्स होते हैं हमारी कंज्यूमर की एक्चुअल परचेजिंग पावर, वो कितना खरीद सकता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का केस भी ऑर्डिनल मेजरमेंट में ही आता है। इसमें गुड्स होमोजीनियस होते हैं और डिविजिबल होते हैं। इसमें टू कंडीशंस होते हैं, दैट इज द आईसी टेंजेंट टू प्राइस लाइन है, या तो हमारी आईसी कर्व प्राइस लाइन के बिल्कुल सिधाई से होती हुई जा रही है, तब हमारा फॉर्मूला हो जाता है एम आर एस एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन में पी वाई, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई गुड। इफ द IC कर्व्स ओनली कॉन्वेक्स टू द रीजन, और अगर IC कर्व सिर्फ कॉन्वेक्स है तब डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स फॉर्मूला लग जाता है। इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू में प्राइस लाइन इक्वल हो जाता है IC से, यानी कि इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ IC कर्व, और इक्विलिब्रियम में हमेशा MRS जो होती है वो हमारी नीचे की तरफ गिर रही होती है, ग्रेजुअली फॉल। Slope of price line is equal to slope of IC, means the delta y upon में delta x हमारा इक्वल है mu x और mu y से। हम कह देते हैं MRS x y is equal to mu x अपॉन में mu y is equal to p x अपॉन में p y, और ये तीनों कंडीशन किसके इक्वल है, एम आर एस एक्स वाई। हेयर वी कैन ऑल्सो से दैट एम आर एक्स डिवाइड एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स और एम यू वाई अपॉन में पी वाई, दैट इज द एम आर एस एक्स वाई। ऐसी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो गवर्नमेंट ने प्राइस की सब्सिडी देनी हो, कोई फूड की ग्रांट देनी हो, और सप्लाई को डिराइव करना हो, क्योंकि ये कस्टमर प्रेफरेंस से रिलेटेड है, कस्टमर दो गुड्स में किसको प्रेफर कर रहा है, तो इसलिए ये सप्लाई को ड्राइव करने में हेल्पफुल है। इसकी क्रिटिसिज्म दी थी आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था ये नॉन ट्रांजिटिव है, मीन्स ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है, तो ए इज नॉट इक्वल टू सी, ये नहीं माना जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू सी, दैट इज नॉन ट्रांजिटिविटी है। रॉबर्टसन कहता है कि आपको पुरानी ही शराब नई बोतल में डाल कर दे दी, मीन स्पेक्यूलेशन स्नॉब वेबलन तो ये भूल ही गया, और सिर्फ 2 गुड्स ही क्यों ले रहे हो, 2 से 4 गुड्स भी ले सकते हैं। तो रॉबर्टसन ने इस तरीके से इसकी क्रिटिसाइज किया है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।